گرمی باعث پن پروگرام بوزان یہ آکاشوانی سری نگر سنس دویمس اعلانس پیڑو آکاشوانی سری نگر اپنی گھڑیاں ملائیے، شہربین ٹائم شام کے 7 بجے ہے۔ شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹس، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت۔ خیبر سیمنٹس، اپنے تعمیرات دل سے بناؤ۔ شہربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: الیکشن شیڈول جاری ہونے کے ساتھ ہی چناوی سرگرمیاں تیز، دل بدلی کا سلسلہ جاری، کئی سابق وزراء اور ممبر قانون سازیہ پارٹیوں سے مستعفی۔ سابق وزیر چودھری ذوالفقار علی بی جے پی میں شامل، سابق ایم ایل سی جاوید مرچال نیشنل کانفرنس میں شامل، ڈی ڈی سی وائس چیئرپرسن کپواڑہ اور ایڈوکیٹ منظور احمد گنائی مستعفی۔ غلام نبی آزاد کبھی بھی واپس کانگریس میں نہیں جائیں گے، ترجمان ڈی پی اے پی۔ اسمبلی انتخابات کے موقع پہ وفاداریاں بدلنے کا عمل فطری ہے، غلام حسن میر۔ اور بانیہال کے کھڑی علاقے میں سڑکوں کی تعمیر میں بے ضابطگیاں، پی ایم جی ایس وائی اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت۔ موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام واسطہ۔ عادل نیا گھر بنا رہا ہے، مبارک ہو۔ بولا کہ نیا گھر بھی پرانے گھر جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو کیا مشورہ دیا آپ نے؟ مشورہ نہیں، سیمنٹ وہی جو آپ نے بھی لگایا تھا، خیبر او پی سی سیمنٹ، یہی تو ہے 100% سیمنٹ۔ باقی رہی مشورے کی بات، وہ آپ سے اچھا کون دے سکتا ہے؟ وہ تو ہم دے چکے، جو بھی بناؤ دل سے بناؤ۔ خیبر او پی سی سیمنٹ، یہی ہے خالص سیمنٹ، تاکہ آپ جو دل سے بنائیں وہ پیڑھی در پیڑھی چلے۔ میری HIV رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے اور ڈاکٹر نے مجھے ART سینٹر ریفر کر دیا، سب ختم ہو گیا۔ نہیں، HIV رپورٹ پازیٹیو آنے پر بھی سب ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیمت روپ سے ART یعنی اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، یہ ایک لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے جس کی دوائیاں ART سینٹرز میں مفت ملتی ہیں اور اس سے آپ ایک سوستھ جیون جی سکتے ہیں۔ ART سینٹرز GMC جموں، سکمس سورا اور GMC کٹھوا میں ہیں، اور ہاں ادھم پور، راجوری اور لے میں لنکڈ ART سینٹرز ہیں۔ HIV کی ادھک گپت اور مفت جانکاری کے لیے نیشنل ٹول فری نمبر 1097 پر کال کریں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی JNK ایڈز کنٹرول سوسائٹی۔ شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور FM کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا شیڈول جاری ہونے کے ساتھ ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ جہاں افواہوں اور فیک نیوز کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، وہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے لیڈران کی دل بدلی اور وفاداریاں بدلنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جموں میں آج بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر جموں کشمیر اپنی پارٹی کے نائب صدر اور سابق وزیر چودھری ذوالفقار علی نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز چودھری ذوالفقار علی دلی میں وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئے تھے اور آج جموں میں انہوں نے بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر باضابطہ بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ چودھری ذوالفقار علی کا تعلق راجوری ضلع کے درحال اسمبلی حلقے سے ہے اور وہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے بنیادی ارکان میں شامل تھے۔ واضح رہے کہ چودھری ذوالفقار علی پی ڈی پی کے دور اقتدار میں کابینی وزیر کے طور پر براجمان تھے۔ آج کی تقریب میں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، ڈاکٹر جتیندر سنگھ، ترون چوگ اور دیگر لیڈران موجود تھے۔ اسی دوران اپنی پارٹی کے
एक सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी जावेद मिर्चाल ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। जावेद मिर्चाल का ताल्लुक करना से है। आज उन्होंने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हेडक्वार्टर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी और जिलाई सदर कुपवाड़ा कैसर जमशेद लोन भी मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक इस मौके पर एक डीडीसी मेंबर और चंद साबिक बीडीसी मेंबरान ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उधर आज कुपवाड़ा के पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन कुपवाड़ा हाजी फारूक अहमद ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया। बताया जाता है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज साबिक वजीर चौधरी ताज मोहिउद्दीन ने डीपीएपी से इस्तीफा दिया था और अगले चंद रोज में वो श्रीनगर में कांग्रेस में बाज़ाबिता शमूलियत इख्तियार करेंगे। बताया जाता है कि चंद और साबिक मेंबरान कानून साजिया और भी वापस कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। दरअसल डीपीएपी वर्किंग कमेटी के मेंबर और सीनियर लीडर एडवोकेट मंजूर अहमद गनाई ने भी आज पार्टी से इस्तीफा दिया। इसी दौरान डीपीएपी के तर्जुमान आला सलमान निजामी ने इन खबरों की तरदीद की कि गुलाम नबी आजाद वापस कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस लीडरशिप को तब मशवरा दिया था कि वकार रसूल वानी को प्रदेश कांग्रेस का सदर न बनाया जाए, लेकिन आज उन्होंने आजाद साहब की बात पर ही अमल किया। सलमान निजामी ने मजीद कहा कि आजाद साहब अब कभी भी कांग्रेस में वापस नहीं जाएंगे और न ही कांग्रेस जमात से किसी ने आजाद साहब से राबिता कायम किया है। अलबत्ता आने वाले असेंबली इंतखाबात में वो सेक्युलर जमातों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरीके से आज़ाद साहब ने कांग्रेस को छोड़ा और उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, हमारा मकसद यही था कि हम असेंबली के इलेक्शनों में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज़ाद साहब ने जब पार्लियामेंट की आखिरी रिटायरमेंट के बहुत सी तंजीमों ने आज़ाद साहब को ऑफर किया था राज्यसभा का, लेकिन हमारा मकसद था जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करना। तो उसी मकसद को आगे लेके हमने चलना है और ऐसी बात ही नहीं है कि हमारी किसी कांग्रेस के लीडर दिल्ली से कोई राब्ता हुआ या किसी ने ऑफर किया या हमने ऑफर किया, क्योंकि आज जो फैसला कांग्रेस ने लिया है, यही सजेशन जो है, यही राय जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2 साल पहले कांग्रेस को दी थी कि जो आप वहां पर लीडरशिप अपॉइंट कर रहे हैं, जिस लीडर को आप बना रहे हैं, कमान समान दे रहे हैं, तो वो उस लायक नहीं है। तो आज 2 साल के बाद कांग्रेस ने वहां चेंजेस की और यही रिकमेंडेशंस हमने जो है 2 साल पहले, लेकिन उसके बीच में गाली गलौज, ह्यूमिलेशन, एक इतने बड़े लीडर जिसने कांग्रेस को बनाया, इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया आज़ाद साहब ने, पंजाब में कांग्रेस को सरकार बना के दी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सरकार बना के दी, कर्नाटका में, और कई सालों इंदिरा गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इनके साथ काम करके आज़ाद साहब को इन 2 सालों में गाली गलौज, ह्यूमिलेट किया गया। सिर्फ उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि लीडरशिप चेंजेस होनी चाहिए। जो आपने फैसला जम्मू कश्मीर में लिया है, सदर को बनाया है, तो वो गलत था। अब तो कांग्रेस लीडरशिप ने वो फैसला वापस ले लिया, अब तो तारिक अमीद कारा को प्रदेश कांग्रेस का सदर बनाया, तो क्या अब कोई चांसेस हैं वापस जाने के? है, अब हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब लोग हमारे जो हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरीके से आज़ाद साहब की जो कैंपेनिंग रही, हमारा नया चुनाव निशान था और हमारा मकसद यही था पहले दिन से कि हम जम्मू कश्मीर के गरीब तबके को उठाएंगे। अब आपकी जमात से एक एक आदमी अलग हो रहा है। कल चौधरी ताज मोहिउद्दीन अलग हुए, आज एडवोकेट मंजूर गनाई अलग हुए, और बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते में कुछ और लोग अलग हो रहे हैं। तो आखिर आपके साथ रहा कौन? नहीं, हमारे साथ बहुत हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ही बहुत बड़ी हस्ती हैं और लोग आते जाते हैं। बहुत सी तंजीमों से निकले लोग, कोई कांग्रेस से निकला, हमारे पास आया, कोई एनसी से निकला। ये तो चलता रहता है। इलेक्शन जब ही अनाउंस होते हैं, किसी को टिकट मिलनी है, किसी को नहीं मिलनी है, कोई यहाँ जाएगा, कोई वहाँ जाएगा। तो लेकिन 1 या 2 लीडरों से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस तंजीम जो है उसमें कुछ ही लीडर बचे थे, लेकिन हमें आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत से लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हैं और हमारा जो है बातचीत चल रही है सेकुलर पार्टीज के साथ। हमें बीजेपी का मुकाबला करना है। आने वाले असेंबली चुनाव में क्या आप सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे? नहीं, सभी सीटों पे नहीं लड़ेंगे। देखिए, हमें किसी तंजीम को फायदा या नुकसान पहुंचने की हमने वो कोई साजिश नहीं रचनी है।
ہم جہاں جہاں مضبوط ہیں، جہاں جہاں ہمارا کاڈر مضبوط ہے، وہاں ہم چناؤ لڑیں گے اور مضبوطی سے لڑیں گے۔ غلام نبی آزاد صاحب، اگر ہم کشمیر کی بات کریں یا جموں، ہر ایک انسان آزاد صاحب کے دل میں بسا ہے اور ہر ایک انسان کے دل میں آزاد صاحب بسے ہیں، کیونکہ چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، آزاد صاحب نے سب کے لیے کام کیا ہے اور وہی دور ہم چاہتے ہیں پھر سے لانا۔ لیڈر جو ہیں، بہت سے لیڈر جو ہیں، ان کو آپ نے دیکھا اس الیکشن میں پرفارم نہیں کر پائے، تو ان کو آزاد صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں، شاید انہوں نے جو ہے خیرباد کر دیا ہو۔ ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم تو صاف کہہ رہے ہیں اپنے جتنے بھی لیڈران ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے، ہمیں نئے چہروں کو موقع دینا چاہیے۔ یہ تنظیم اسی لیے بنائی گئی۔ آزاد صاحب خود اسمبلی چناؤ میں حصہ لیں گے؟ دیکھیے، ابھی ہماری بات کچھ سیکولر پارٹی سے بات چل رہی ہے، فائنل ڈیسیجن کیا آئے گا اس کے بعد ہم فیصلہ لیں گے۔ سیکولر جماعتوں سے بات چیت جاری ہے، بات کر رہے تھے ڈی پی اے پی کے ترجمان سلمان نظامی۔ اسی دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج سری نگر میں ایک تقریب پر بولتے ہوئے کہا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں کشمیر دشمنوں اور ان کے مقامی اعلی کاروں کو مکمل طور مسترد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ادھر جموں میں بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت یقینی ہے اور اگلا وزیر اعلیٰ بی جے پی کا ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے علاوہ بی جے پی کے دیگر لیڈران بھی اسمبلی انتخابات کی چناؤ مہم میں جموں صوبے میں حصہ لیں گے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ 20 اگست کو پہلا نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ہی پارٹی کے امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی۔ دراصل آج سپہر کو جنوبی کشمیر میں پارٹی لیڈران کی میٹنگ جاری تھی، جس میں امیدواروں کے ناموں پر حتمی فیصلہ لیا جا رہا ہے۔ ادھر معلوم ہوا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان الائنس پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، تاہم ابھی کسی حتمی نتیجے پر دونوں پارٹیاں نہیں پہنچ پائی ہیں۔ ادھر دلی میں آل انڈیا کانگریس مہیلا کی صدر الکا لامبا نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ اسمبلی انتخابات کے دوران اتحاد کرنے کے بارے میں گفت و شنید جاری ہے۔ اسی دوران جموں کشمیر اپنی پارٹی اور ڈی پی اے پی سے لگاتار لیڈروں کا انخلا ہو رہا ہے۔ آج اپنی پارٹی سے 3 لیڈران الگ ہوئے۔ دراصل جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر غلام حسن میر نے شہربین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی چناؤ کے وقت اکثر سیاسی پارٹیوں سے لیڈران کا انخلا مینڈیٹ کو لے کر ہوتا ہے اور کچھ لیڈران سپریمیسی قائم کرنے کے لیے پارٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں نیشنل کانفرنس سے بھی اسی طرح لیڈران کا انخلا ہوگا۔ غلام حسن میر نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی کسی سے بھی الائنس نہیں کرے گی، البتہ یہ چناؤ نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ مقصود صاحب، میں آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن کے لیے تیار نہ ہو؟ پھر سکسیسز، فیلیئرز، دیٹ از پارٹ آف دا گیم، دیٹ از ناٹ دا الٹیمیٹ۔ لیکن آج کے الیکشن میں سب سے بڑی بات جو میں محسوس کر رہا ہوں، اس وقت ہمارا یوتھ الیکشن میں پارٹیسپیٹو موڈ میں ہے۔ کئی الیکشنز پچھلی بار ہو گئے، نہ لوگوں نے پارٹیسپیشن دکھاتے تھے فل، نہ نوجوانوں کی طرف سے پارٹیسپیشن کا موڈ لگتا تھا۔ تو اس سلسلے میں جو میں پازیٹیو ٹرینڈ اس الیکشن میں دیکھ رہا ہوں، وہ نوجوانوں کی الیکشن میں دلچسپی اور پارٹیسپیشن کے مائنڈ۔ یہ الیکشن ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جموں کشمیر کی ترقی کے لیے۔ اس وقت ہمیں عقل سے کام لے کر ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو جموں کشمیر کو ترقی کی راہ پر لیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے، ہم کو جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ جذباتی سیاست نے جموں کشمیر کے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائی، بڑی سختیاں یہاں کے لوگوں نے جھیلی، یہاں کے نوجوانوں نے جھیلی۔ اب کی بار عقل سے کام لے کر ایسی سیاست کو ووٹ دینا ہے جو کشمیر کو ترقی کی راہ پر لائے، یہاں امن قائم ہو، اور یہاں پر جو ایکسپلائٹیو آف سینٹیمنٹس کی پالیٹکس ہے
उससे नजात मिले। फिर क्या वजह है कि आपके एजेंडे से लोग दूर हो रहे हैं? उस्मान मजीद के बाद आज चौधरी जुल्फिकार, जावेद मिर्चाल एक एक करके आपसे अलग हो रहे हैं। देखिए, अब जब इलेक्शन सामने आता है, इलेक्शन में कुछ लोगों को मैंडेट का मसला होता है, मैंडेट की वजह से जाते हैं। जैसे आपने मिर्चाल साहब का देखा, कईयों को अपनी अपमैनशिप नहीं चलती है पार्टी में, तो वो अपमैनशिप को बचाने के लिए अपने पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के जाते हैं। ये हर जगह होता है। आप देखिएगा दूसरी पार्टियों से भी इस वक्त इनखला होता जा रहा है। इलेक्शन पार्टियों में एक तब्दीली लाती है। आप किसी भी जमात को लीजिए, आप देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लोग टूट रहे हैं, लेकिन चूंकि उसकी तरफ मीडिया की नजरें कम जाती हैं तो वो बात होती नहीं है। आप देखेंगे आइंदा दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पत्ते भी किस तरह बिखरेंगे। तो अब अपनी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी कि अलायंस किसी के साथ करेगी? हमने तो क्लियर ये कह दिया, अपनी पार्टी अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी। न ये एक पार्टी के अलायंस में होगी, न दूसरी पार्टी के अलायंस में। पोस्ट इलेक्शन अलायंस के बारे में भी हमने वाज़ह कर दिया। उस वक्त जब क्या सिनेरियो होगा, उस वक्त भी हम लोगों से पूछेंगे क्या कौन सा तरीका इख्तियार करना है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी भी जमात से अलायंस नहीं करेगी, बात कर रहे थे पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर। इधर शहरबीन को मौसूला इत्तलात के मुताबिक अगले हफ्ते वफादारियां बदलने के सिलसिले में कई बड़े चेहरे भी सामने आएंगे। इसी दौरान ये मालूम हुआ है कि अगले दिनों में मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता कई डीडीसी मेंबरान भी वफादारियां बदलेंगे और बेशतर डीडीसी मेंबरान ने असेंबली इंतखाबात लड़ने का मन बना लिया है। बताया जाता है कि कांग्रेस के सीनियर लीडरान 2 रोज बाद श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां कई साबिक मेंबरान कानून साजिया वापस कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उधर कई लीडरान ने मुसलसल मानी खेज खामोशी इख्तियार की हुई है। इनमें साबिक वजीर अब्दुल हक खान, पीरजादा मंसूर अहमद और चंद दीगर लीडरान भी शामिल हैं। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत 2024 यानी रवां बरस तक मुल्क बशमूल जम्मू कश्मीर के हर घर को नल से जोड़ने का हदफ मुकर्रर किया है। तयशुदा डेडलाइन की रूह से यह हदफ तकरीबन पूरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन शहरबीन को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो शिकायत पानी की कमियाबी के ताल्लुक से आए रोज मौसूल होती हैं, वो इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि मज़कूरा हदफ का हुसूल अभी दूर है। सिर्फ वादी कश्मीर की बात करें तो ऐसे सैकड़ों इलाके हैं जो अभी भी पानी की माकूल फराहमी के लिए तरसते हैं। कहीं बरसों पहले बिछाई गई पाइपलाइंस खस्ताहाल होने के बाइस सप्लाई मुतासिर है, कहीं ठेकेदार अपना काम अधूरा छोड़कर सार्फिन को परेशानी दे गया है, और कहीं बिना फिल्ट्रेशन के फराहम किया जाने वाला पानी सार्फिन के लिए तशवीश और बीमारी का बाइस है। इसी तनाजुर में गांदरबल से रहीम रिजवान का कहना है कि जिले के दर्जनों इलाकों में पीने के पानी की फराहमी मुतासिर है, और सूरत हाल की बुनियादी वजह यह है कि महकमे जल शक्ति की जानिब से तामीर किए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट तकमील के मुख्तलिफ मरहलों में अटके हुए हैं। इस सूरत हाल का सद्जवाब करने का यकीन तो अफसरान की तरफ से कई बार दिलाया गया, पर कार्रवाई नदारद। तफसीलात के साथ खुद रहीम रिजवान।
गांधरबल जिले में अरसा दराज से 1 दर्जन के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट तशना तकमील रहने से मकामी आबादी मुतअद्दिद मसाइब का सामना कर रही है और लोग आसपास के नदी नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल में लाने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के इस दावे को कि हर घर नल से जल पहुंचाना है यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांटों का 90% तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम 10 से 15% काम मुकम्मल कराने के लिए गुज़श्ता 3-4 बरसों से मुतलका महकमा सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि जमीनी सतह पर कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके बाइस एक कसीर तादाद आबादी पीने के पानी की किल्लत के सबब गुनागुम मसाइब का सामना कर रही है। अगरचे महकमा जल शक्ति गांधरबल ने वुरपा शागी नाग में करोड़ों रुपए खर्च करके 4 साल कबल एक फिल्ट्रेशन प्लांट का तामीरी काम शुरू किया था, तो 4 साल के दौरान इसका 95% काम मुकम्मल कर दिया गया। इस मामले की निस्बत चेयरमैन ने मुतअद्दिद बार कई रिपोर्ट भी नशर की थी, जिसको लेकर चीफ इंजीनियर जल शक्ति ने 3 माह कबल इलाके का दौरा भी किया और उन्होंने मौके पर ही वो तमाम पाइपें जो ठेकेदार ने यहाँ बिछाई थी को तब्दील करने के अहकाम सादिर किए, क्योंकि वो बकौल मकामी लोग गैर मयारी थी। ताहम 3 माह से वो पाइपें चेंज नहीं हो पाई, जबकि महकमा ने वुरपश और दीगर इलाकों में छोटी पाइपें बिछाने का काम शुरू किया और मेन काम को अधूरा छोड़ दिया गया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये पाइपें बिछाने में भी एक तो वो गपले कर रहे हैं और दूसरा ये काम काफी सुस्त रफ्तारी से जारी है। इससे इस साल भी ये काम पाई तकमील तक पहुंचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसी तरह कई साल कबल मुतलका महकमा ने करोड़ों रुपए खर्च करके प्रंग इलाके में लरी प्रंग नामी स्कीम चालू की थी, जिससे दर्जनों इलाकों को पीने का साफ पानी मैसर हो सकता था। ताहम महकमा ने लाहौर रेपोरा तक पाइपलाइनें बिछाई और इस काम को भी अधूरा छोड़ दिया गया। इधर गुजबान उतीपोरा बारसू में महकमा ने कई साल कबल एक ट्यूबवेल तामीर किया था और इसका तामीरी काम भी मुकम्मल कर दिया। ताहम मुतलका महकमा इस ट्यूबवेल को चालू कराने में अदम तवज्जी का मुजाहरा कराया, जिसके बाइस इस पर इंहिसार करने वाली आबादी पीने के पानी से महरूम है। इसी तरह बोनीजुल फिल्ट्रेशन प्लांट, बामिलुना फिल्ट्रेशन प्लांट और हारीपोरा फिल्ट्रेशन प्लांट का 80% तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। 20% काम तशना तकमील रहने से हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी पीने के पानी से महरूम है। अगरचे मकामी लोगों ने कई बार महकमा जल शक्ति गांधरबल को जेर तामीर फिल्ट्रेशन प्लांटों का तामीरी काम पाई तकमील तक पहुंचाने की गुजारिश की, ताहम महकमा के अफसरान ने हर बार यकीन दहानी तो की, मगर जमीनी सतह पर इस काम को अमली जामा पहनाने से मुतलका महकमा ताहाल कासिर रहा। इधर चाकी अंगूरा स्कीम के पानी से मुस्तफीद होने वाले सैनिक स्कूल कॉलोनी, मलपोरा और दीगर मुल्का इलाके बार बार पीने के पानी से महरूम रहते हैं। मकामी लोगों का इल्जाम है कि उन्हें कभी कभार पीने के पानी की सप्लाई वागुजार की जा रही है, जिसके बाइस उन्हें शिद्दत की गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बारसू, गौसिया कॉलोनी, उतीपोरा, मीरमौला और दीगर मुल्का इलाकों के लोगों की शिकायत है कि इन इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई अक्सर मुतासिर रहती है और मकामी लोगों को पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के बाइस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि मुतासिरा इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं और जिले में जेर तामीर फिल्ट्रेशन प्लांटों का तामीरी काम पाई तकमील तक पहुंचाया जाए। गांधरबल से रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। कांग्रेस के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने आज फिरोजपुरा रफियाबाद में पार्टी कारकुनों के इजलास में शमूलियत की। इस मौके पर कई नौजवानों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। अल्ताफ अहमद मलिक ने वर्करों पर जोर दिया कि वह असेंबली इंतखाबात में फिलफौर जुट जाएं। दरियासना आज टंगमर्ग में पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत फ्रंट के सदर अब्दुल कयूम वानी ने की। इस मौके पर मोहम्मद सुलेमान भट्ट, गुलाम मोहम्मद मागरे और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। वादी के सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के इंतजाम के दावे अपनी जगह, पर इस हकीकत से सरफ नज़र मुमकिन नहीं है कि मुतअद्दिद सरकारी स्कूलों में तलबा और असातिज़ा का बाहमी तनासुब गैर तसल्ली बख्श होने के बाइस तदरीस का अमल मुतासिर है। इस सिलसिले में त्राल इलाके से शबीर भट्ट की इत्तला है कि वहाँ के कई एक स्कूलों में सैकड़ों तलबा को पढ़ाने के लिए फ़कत 1 या 2 उस्ताद मौजूद हैं, जबकि कई सरकारी स्कूलों में 80-90 तलबा की खातिर दर्जन भर असातिज़ा मौजूद हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ शबीर भट्ट।
स्कूल में इम्तिहानी नताइज भी बेहतर रहे हैं। ताहम जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में महकमे तालीम का हाल बेहाल है। वहीं सरकारी स्कूलों के अंदर माकूल स्टाफ की कमी और बुनियादी ढांचे के फुकदान होने की वजह से अवामी हलकों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। त्राल के बालाई इलाकों में सरकारी स्कूलों में माकूल स्टाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में यकसर नाकाम हो रहे हैं और इस पर तुर्रा है कि असर रसूख रखने वाले उसातिज़ा को त्राल टाउन के सरकारी स्कूलों में तैनात करके बालाई इलाकों में ज़ैर तलीम तलबा के हकूक पर शब खून मारा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक तालीमी जोन लोरगाम के यूपीएस जिजबल, यूपीएस सतूरा, यूपीएस गुदरू, यूपीएस हाजननार, यूपीएस शौजन, प्राइमरी स्कूल गुजर बस्ती नागबल गुलशनपुरा और कई दीगर स्कूलों में सैकड़ों गरीब तलबा ज़ैर तलीम है, लेकिन मुदर्जिका स्कूलों में माकूल स्टाफ की कमी ने ज़ैर तलीम तलबा के कैरियर पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। इसी तरह तालीमी जोन त्राल के बीपीएस ब्रनपथरी में 1, बीपीएस ब्रनपथरी एसएसए में 2, जबकि पीएस बुगमर में महज 1 उस्ताद, जबकि पीएस ब्रंतल में 1 ही उस्ताद तैनात किया गया है, जिसकी वजह से इन सरकारी स्कूलों में निजाम तालीम शिद्दत से मुतासर हो रहा है। लेकिन सूरत हाल का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि टाउन में मौजूद सरकारी स्कूलों के अंदर एक्सेस स्टाफ मौजूद है, जहां यूपीएस जिजबल में महकमे तालीम ने 110 तलबा के लिए 5 असातिज़ा तैनात किए हैं। वहीं टाउन में मौजूद बीएमएस त्रालपाइन के अंदर 110 तलबा के लिए 15 असातिज़ा तैनात किए गए हैं। इसी तरह हाई स्कूल त्रालेबाला में 17, जबकि जीएमएस त्राल में 65 तलबा के लिए 10 असातिज़ा तैनात किए गए हैं। अवामी हल्के हैरान है कि अगर टाउन में मौजूद त्रालपाइन के स्कूल में ज़ैर तलीम 110 तलबा के लिए 15 असातिज़ा तैनात है, तो फिर यूपीएस जिजबल में 110 तलबा के लिए महज 5 असातिज़ा तैनात करना कहाँ का इंसाफ है। अवामी हलकों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब वालिदैन के बच्चे ज़ैर तलीम होते हैं, इसलिए इंतजामिया को इस बारे में ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। वहीं शौजन त्राल के एक वफद ने शहरबीन को बताया कि उनके यहाँ स्कूल बिल्डिंग 2 साल से तशनीह तकमील है और इस हवाले से अवामी गुजारिशों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने आज शाम शहरबीन को बताया कि शोबे तालीम के लिए जिला इंतजामिया पूरी तवज्जो मरकूज कर रहा है और गुज़श्ता बरसों के दौरान पुलवामा जिला के सरकारी स्कूलों में निजाम तालीम में बहुत ज्यादा बेहतरी दर्ज की जा रही है। ताहम सरकारी स्कूलों में मौजूद स्टाफ और रैशनलाइजेशन के हवाले से तमाम तर जरूरी इकदाम किए जाएंगे ताकि अवामी शिकायत का इजाला किया जा सके। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज फिटारपुरा, चितलूरा, सीलू और राउछा में पार्टी वर्करों के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि सरकार ने पिछले कई माह के दौरान जिस एतबार से बिजली फीस में इजाफा किया है वो सार्फिन के लिए कमर तोड़ है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि बिजली फीस में फिलफौर कमी लाई जाए। और प्रोग्राम के आखिर में खबर के श्री अमरनाथ जी यात्रा कल इख्तिताम पजीर हो रही है। 50 रोज तक जारी रहने वाले इस यात्रा में इस साल 5,11,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लो